I'm happy to know that Hyderabad Riding Club is hosting in Telangana equestrian competition for the first time. I really welcome this competition, and it will be a mark in Telangana that the youngsters from all over the districts, all over the villages who have got the talent on horse riding will participate in these competitions, which will be held from 23rd to 26th of this month. I really appreciate the management who is conducting this competition, and the skills of our youngsters will be displayed on these days. And it's a very good competition, and I understand that medals will be provided for this. The Telangana government support will fully be there for this event. Thank you. Good afternoon. So I'd like to begin with welcoming all the members of the press and media and thanking them to come this afternoon here at HPRC to cover this press conference. I would like to direct your attention towards the handout that we have given. We are conducting two competitions in the coming weekend, starting from 23rd till the 26th of October 2025 at Hyderabad Polo and Riding Club. The first competition of importance, if you competition at different level, so that our kids get the opportunity, get the equal opportunity compared to other states to reach junior nationals. The other competition that you are participating in the same location around the same bandwidth of time, which will reduce their cost of participation to great extent. Good afternoon, everyone. So, first of all, I think just I would like to say about the Telangana State Equestrian Association. We call it as a TSCA. It's a state association. It formed more than a decade back. So before that, it is a JP Riding Club, and it's a combined state. After that, we started as a Telangana State Equestrian Association. So since then, we are conducting many state competitions and qualifies for the Regional Equestrian League, and which is a qualifier for junior nationals. About the entries and all, we have received 48 entries in the Regional Equestrian League and 155 entries in Telangana State Equestrian Competition so far. And that is where all these clubs and HPRC comes in play, where we are bringing the sport to anybody. So if they go through these steps, they will reach junior nationals for sure. And beyond junior nationals, then there is a lot of handholding available. You might think riding is very easy and you just sit on the horse and horse takes you around. Riding is an excellent exercise. I would like some of you to come and start riding here in HPRC. It's the discipline, it teaches you time management. It's an amazing thing, riding. I'm 72, I ride every day even now, and I play a bit of bumblebee polo twice a week. And it keeps you going, you feel nice. You start the day with riding, the whole day goes well. Please, if you try it out, it will be wonderful. Encourage, talk about riding newspaper. It is a fantastic exercise. As a sportsman, you need to have a future profession. Thank you so much for coming here and taking time out for this afternoon. I hope we will be able to answer to all your questions, and we hope that this event is a great success. Thanks. thank you. मैं हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब का सेक्रेटरी हूँ। हमारे पास दो इवेंट्स चालू हुए हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। कल से इवेंट्स चालू हो जाएंगे। दो डिफरेंट इवेंट्स है, एक है रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग REL और एक है तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन कॉम्पिटिशन्स TSC। तो ये REL और TSC की खासियत क्या है? REL में पार्टिसिपेट करने के बाद क्वालिफाई हुए तो जूनियर नेशनल्स को जा सकते हैं कोई भी। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, 10 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स से डिफरेंट कैटेगरीज है। शो जंपिंग और ड्रेसाज बोल के दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में
ये डिफरेंट कैटेगरीज में इवेंट्स होते, तो उसमें जो भी क्वालिफाई हुए नेशनल जूनियर नेशनल्स तक आराम से जा सकते हैं। उसके बाद तो फिर इंटरनेशनल लेवल तक उन लोग आराम से जाने का एक पाथवे मिल जाता। तो और तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन ये है कि स्टेट लेवल कंपटीशन है, इसमें भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा एंट्रीज इसलिए है, इसमें 150 प्लस एंट्रीज है, उसमें 48 एंट्रीज है सो फार आरईएल में। तो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए है कि ये इट्स अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट टू पार्टिसिपेंट्स हु आर टेकिंग हु विल बी टेकिंग पार्ट इन आरईएल इन फ्यूचर। तो इसमें क्या है, इसमें फोकस कैसे करना है, और वो जो डर जो है वो निकल जाता। वो डर एक बार निकल गया तो उन लोग कोई भी इवेंट किधर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब क्या है, नॉर्मल इवेंट्स में लोग ज़्यादा नहीं होंगे। अब जैसे ऐसे स्टेट लेवल इवेंट्स में ग्राउंड भरा हुआ रहेगा, और ग्रैंड स्टैंड फुल रहेगा, और पार्टिसिपेंट्स हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके सामने। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप अगर पार्टिसिपेट कर सके तो वो डर निकल गया तो आराम से कोई भी लेवल तक जा सकते हैं। तो वो मकसद से हम तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन में भी हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स लगाए। उसमें से आरईएल में सिर्फ ड्रेसाज और हैक्स है, टीएससी में सॉरी आरईएल में सिर्फ ड्रेसाज और शो जंपिंग है, टीएससी में शो जंपिंग और ड्रेसाज के साथ हैक्स भी एक ऐड करें। हैक्स भी एक इवेंट है जिसमें से जो बिगिनर्स है, जो शो जंपिंग और ड्रेसाज तक नहीं गए, उन लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स है, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 1, डिफरेंट कैटेगरीज, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 1, जूनियर्स, यंग राइडर्स और सीनियर्स। इसमें कोई भी एज लिमिट 21 अबव भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ओपन इवेंट्स में रखे, तो उस हिसाब से एंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट क्लब से आ गए। इसमें से चेन्नई से भी एंट्रीज है, विजयवाड़ा से भी एंट्रीज है, हैदराबाद तेलंगाना के डिफरेंट हर कोने से भी एंट्रीज है। तो उसके हिसाब से कल से चालू हो जाएंगे, कल, परसों, तरसों, और 23rd, 24th, 25th एंड 26th 4 डेज का इवेंट है। इवेंट कहाँ पे हो रहा है सर? ये हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब हमारे खुद के ग्राउंड्स में हो रहा है। यहाँ पर टाइमिंग क्या रहेगी सर? सुबह में 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक रोजाना। और क्या हमारे पास 2 इंडोर राइडिंग अरीनाज भी है, तो बारिश होने का डर नहीं है। कंपटीशन जो हो रहा है सर, डे और नाइट रहने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ डे इवेंट्स है। हमारे पास नाइट में भी कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, अंदर हमारे पास फ्लडलिट ग्राउंड्स भी है, लेकिन फिर भी ये इवेंट दिन में करने का इवेंट है। पोलो इवेंट में हम रात में करते हैं। कैटेगरी के लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है? कोई इसमें 6 इयर्स एंड अबव जो भी है पार्टिसिपेट, सॉरी 8 इयर्स एंड अबव जो भी है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैटेगरी एज कैटेगरी वाइज। डिसिप्लिन में शो जंपिंग, ड्रेसाज और हैक्स है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं। जिनको एटलीस्ट एक यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद 3 to 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस एक बार आ गया तो कोई एक डिसिप्लिन चूज कर लेके उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते रहते हैं रेगुलरली। तो हमारे पास जो भी ज्वाइन हो उन लोगों को हम इजीली प्रमोट करते रहते ट्रेनिंग हैं। देने वाले खूबसूरती हैदराबादी सर? पूरे हैदराबादी से, हैदराबादीज भी है, बाहर से भी है, मतलब हैदराबाद के लोग भी है। अब एक इंस्टीट्यूट हमारे पास 120 हॉर्सेस है, तो 120 हॉर्सेस में कम से कम एक 50 ग्रूम्स तो होना पड़ता देखभाल करने के लिए। एक ग्रूम 2-3 घोड़े संभाल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद फिर कोचेस जो है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट कोचेस है। जब फर्ज के तौर पे जो ड्रेसाज के लिए एक डिफरेंट कोच रहेगा, शो जंपिंग के लिए डिफरेंट कोच रहेगा, पोलो के लिए डिफरेंट कोच रहेगा, नॉर्मल राइडिंग एक्टिविटी के लिए डिफरेंट कोच रहेगा। उसमें से फिर से लेवल्स है, बिगिनर्स के लिए एक डिफरेंट कोच रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल के लिए एक डिफरेंट कोच रहेगा, सीनियर्स के लिए एक डिफरेंट कोच रहेगा। वैसा तो अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स को संभालते हैं। जैसे कंपटीशन में कोई जीत के आने के बाद उसको पहला इनाम या दूसरा? जी हाँ, मेडल्स और ट्रॉफीज वगैरह देते हैं। और ये क्या है, ये सर्टिफिकेट्स इनके फ्यूचर में भी काम आएंगे। आजकल इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जो भी जा रहे हैं उनको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स रहने से मदद मिलती है। थैंक यू सर।